دوستوں، اردو غزل کی یہ خوبی ہے کہ وہ خط شکست نہیں بلکہ خط نستعلیق ہے، اور خط نستعلیق کا کیا حسن ہوتا ہے، اسے دیکھنا ہو تو محترمہ شبینہ ادیب کو آواز دی جائے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنی غزلوں کے ساتھ، اپنی نظموں کے ساتھ مائک میں آواز دے رہا ہے شبینہ ادیب صاحب۔ چپ ہو جاؤ چھوٹو، بہنوئی بھی ساتھ میں ہے، پریشان کرتی ہے، مطلب آپ کے بہنوئی۔ جناب صدر بنیاد انصاری صاحب، مہمانان، میرے بڑے بھائی شمیم کوثر صاحب، سہیل بھائی، نیب بھائی، بہت آئی ہوں بسوا اور بڑی محبتیں ملی ہیں آپ سب سے۔ بڑی احسان مند ہوں کہ آپ ابھی تک تشریف فرما ہیں۔ ابھی آپ بہت بڑی شاعری سن رہے تھے میرے محترم کرم فرما رئیس انصاری صاحب۔ میں ایک ادنا سی شاعرہ، وقت بہت کم ہے، آپ کو جوہر صاحب کو سننا ہے، لیکن چونکہ میرے لیے حکم ہے، اجازت چاہتی ہوں صدر صاحب سے، اور چونکہ جس طرح کی سماعتیں ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ وہی کچھ آپ کو سنایا جائے۔ 4 مصرعے سب سے پہلے پیش کرتی ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے شریک ہو جائیے گا تو ذرا اچھا لگے گا، دیکھیے گا۔ جو امن کو برباد کرے گا وہ مٹے گا، جو امن کو برباد کرے گا وہ مٹے گا، جو حق پہ ہے آندھی میں چراغ ان کا جلے گا، جو حق پہ ہے آندھی میں چراغ ان کا جلے گا، جو دشمن اسلام ہے ان کو یہ بتا دو، جو دشمن اسلام ہے ان کو یہ بتا دو، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا۔ مجھے امید تھی کہ آپ یہ سب سنیں گے، اسی لیے میں نے حوصلہ کیا اور انتخاب کیا کہ آپ کو وہی سب سنایا جائے۔ میں پیش کرتی ہوں یہ بھی 4 مصرعے، بہار کے جو نتیجے ہمارے سامنے آئے آپ کی آواز بن کر، اور بہار کی جیت پورے ہندوستان کی جیت میں سمجھتی ہوں، ہم سب کی جیت۔ میں پیش کرتی ہوں ان 4 مصرعوں میں، اگر سچ کہنے کی میں نے کوشش کی ہے تو آپ اس سچ کی تائید اس طرح سے کر دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، دیکھے گا۔ دنیا کو اپنی شان دکھا دی بہار نے، دنیا کو اپنی شان دکھا دی بہار نے، کشتی عداوتوں کی جلا دی بہار نے، کشتی عداوتوں کی جلا دی بہار نے، دھوکے سے ایک جیت ہوئی تھی جسے نصیب، دھوکے سے ایک جیت ہوئی تھی جسے نصیب، اس سورما کو دھول چٹا دی بہار نے، اس سورما کو دھول اچھا لگا؟ جی آپ کا حکم ہے، میں پڑھتی ہوں، آپ سننا چاہتے ہیں، مجھے حوصلہ ملا، آپ نے مجھے دعائیں دی، شکر گزار ہوں، میں پڑھتی ہوں۔ دنیا کو اپنی شان دکھا دی بہار نے، دنیا کو اپنی شان دکھا دی بہار نے، کشتی عداوتوں کی جلا دی بہار نے، کشتی عداوتوں کی جلا دی بہار نے، دھوکے سے ایک جیت ہوئی تھی جسے نصیب، دھوکے سے ایک جیت ہوئی تھی جسے نصیب، اس سورما کو دھول چٹا دی بہار نے، اس سورما کو دھول چٹا دی بہار نے۔ آئیے ہم کچھ دیر اسی ماحول میں رہ چکے، آپ لوگ سن رہے ہیں، اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ میں پڑھوں۔ 4 مصرعے اور پیش کرتی ہوں، نام نہیں لیتی ہوں، سب آپ پہنچ رہے ہیں کہ میں کس کے لیے کہہ رہی ہوں، سنیں، یہ بھی بطور خاص سماعت کریں۔ مشقتوں میں کہاں عیش وہ جو لوٹ میں ہے، پہنچیے گا۔ مشقتوں میں کہاں عیش
کہ सुनहरे ख्वाब बतौर खास देखिए कि सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है। सुने, सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ बनाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ बनाने में खूब माहिर है। वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, मगर ज़बान चलाने में खूब माहिर है, मगर ज़बान चलाने में खूब माहिर है। और आइए गीत पढ़ती हूँ। आज हम सब जिस हालात से गुजर रहे हैं, मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। बार बार एक आवाज़ आई थी गीत गीत, तो मैं चाहती हूँ कि सीधे सीधे गीत बाद में सुन लीजिए। वक्त पर अरे नहीं, मैं बहुत कुछ नया नया पढ़ सकती हूँ, लेकिन अच्छा चलिए पढ़ूँ। तो एक बार मुझे अपनी ताली से इजाज़त दे दीजिए ताकि मुझे लगे कि आप सब बातें सुनना चाह। मैं भी बाखुदा मैं गज़ल पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि आप इस तरह सुन। मैं पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। वो तो बहुत कई बार पढ़ कर गई हूँ, लेकिन फिर भी लगता है मैं सुनाती हूँ। देखिए, सुहेल भाई का हुक्म है और इनका हुक्म मानना ज़रूरी है मेरे लिए। और एक ऐसी डांट आ गई तो अब तो और मानना पड़ेगा। बहरहाल मैं पढ़ती हूँ कि खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर जो पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतों से सुना गया, बड़ी दुआएं मिली, मुझे हुक्म मिला है, मैं शेर पढ़ती हूँ बतौर ख़ास। आपसे गुजारिश है कि आप भी उतनी ही दुआ दे दें तो अच्छा लगेगा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मुझे इन बड़े लोगों ने, आप सब ने दुआएं दे दी। मैं पेश करती हूँ ये शेर। मैंने अपने कुछ नए शोरा को के लिए कहा है। जुमा 8 दिन होते हैं, हमारा शायर आता है, ये बड़े लोग बैठे होते हैं, इनके आगे आकर बैठ भी जाते हैं, माइक पर इनके शेर भी पढ़ते हैं और आपसे दाद वसूल के ले जाते हैं। और ज़रा देखिए उनको, मैं ऐसे लोगों को मैंने ये शेर कहा है, मैं आप सबकी खिदमत में पढ़ना चाहती हूँ कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठी हो पहली सफ में। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठी हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से
मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि बनेगा गुजरात भी कहीं पर, गिरेंगी लाशें भी इस ज़मीं पर, बनेगा गुजरात भी कहीं पर, गिरेंगी लाशें भी इस ज़मीं पर। अभी तो कुछ दिन सुकून रहेगा, अभी हुकूमत नहीं है, खामोश लब है बल्कि दिलों में उल्फत नहीं है। और आइए हम आजकल जिस हालात से दो चार हो रहे हैं, मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ आप सबकी खिदमत में। बहुत सलीके से, आप बहुत तहजीब से, जिस तरह मुझे सुना जाता है आप सुन रहे हैं, मैं एहसानमंद हूँ, मैं सीधे सीधे ये गीत पढ़ूँ। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। हमारा और आप सबका दर्द, आपसे इल्तिजा ये है कि थोड़ा सा सुबह का वक्त है, हमें किस तरह जाग कर, किस तरह जिंदा दिल होकर सुनना चाहिए, किस तरह आप सुनते हैं, बस इतनी सी इल्तिजा। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। गांधी के सिंहासन पर है, गांधी के सिंहासन पर है नाथू की संतान। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। बंद पेश करती हूँ बतौर खास, देखिएगा ऐसा न लगे कि मैं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने में या लोरी सुना रही हूँ, ऐसा लगे कि मैं जिंदा लोगों के बीच में हूँ। कि आज़ादी से घूम रहे हैं खून बहाने वाले, आज़ादी से घूम रहे हैं खून बहाने वाले। कितने खुश हैं लाशों के अंबार लगाने वाले, आज़ादी से घूम रहे हैं खून बहाने वाले। कितने खुश हैं लाशों के अंबार लगाने वाले। सत्ता की कुर्सी पर हैं गुजरात जलाने वाले, सत्ता की कुर्सी पर हैं सब आग लगाने वाले। उजले कपड़ों में लिपटे हैं सब काले शैतान। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। ताली बजानी है तो ज़रा ज़ोर से बजाइए, लगे कि आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। बतौर ख़ास देखें कि गर मंदिर मस्जिद का झगड़ा, गर मंदिर मस्जिद का झगड़ा रोज़ उठेगा यूं ही। गर मंदिर मस्जिद का झगड़ा रोज़ उठेगा यूं ही। गलियों में और चौराहों पर खून बहेगा यूं ही। गर मंदिर मस्जिद का झगड़ा रोज़ उठेगा यूं ही। गलियों में और चौराहों पर खून बहेगा यूं ही। इंसानों के हाथों गर इंसान मरेगा यूं ही। इंसानों के हाथों गर इंसान मरेगा यूं ही। पूरा हिंदुस्तान बनेगा एक दिन कब्रिस्तान। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। और कल तक ये कानून भी अपने, कल तक ये कानून भी अपने मुल्क में बन जाएगा। कल तक ये कानून भी अपने मुल्क में बन जाएगा। जिसके घर में चोरी होगी चोर वो कहलाएगा। कल तक ये कानून भी अपने मुल्क में बन जाएगा। जिसके घर में चोरी होगी चोर वो कहलाएगा। बर्बादी से देश को अब कोई न बचा पाएगा। बर्बादी से देश को अब कोई न बचा पाएगा। जल्लादों के कब्जे में है पूरा हिंदुस्तान। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। आखिरी बंद पढ़ती हूँ और आप सबसे इजाज़त कि देश में अब तक सुलग रही है, देश में अब तक सुलग रही है नफरत की चिंगारी। देश में अब तक सुलग रही है नफरत की चिंगारी। कस्बों कस्बों शहरों शहरों फैली है बेकारी। कस्बों
कस्बों शहरों शहरों फैली है बेकारी। पेट की खातिर बेच रही है तन भारत की नारी, पेट की खातिर बेच